Hello students, welcome once again to the web classes. Today again we are going to have the subject statistics, unit number 2 of part 2. The name of chapter is random variable and discrete probability distribution for 12th commerce English medium GSEB. For this is lecture number 6 for this chapter. Now here illustration 18. For a binomial distribution, mean is 18 and the variance is 4.5. Determine whether the skewness of distribution is a positive or negative. So mean and variance हमने पहले भी ऐसा एक सम अटेम्प्ट किया था जिसमें NP is always greater than NPQ. It means you can write NPQ by NP, that will give you Q. Okay, that will give you what? Q. Now the mean is 18, NPQ is 4.5. So 4.5 by 18, answer is 1 by 4. That is the value of Q. So Q is 1 by 4 and P means 3 by 4. 3 by 4 का मतलब क्या हुआ? 1 by 2 से ज़्यादा है कि कम है? तो ये 1 by 2 से ज़्यादा है. 1 by 2 से ज़्यादा है तो वो होगा नेगेटिव. अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक किए होंगे अच्छे से, ठीक है, तो ही आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्या कह रहा हूँ. तो ये 1 by 2 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, इसलिए इसे हम कहेंगे नेगेटिव स्क्यूनेस. इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द इलस्ट्रेशन 19. A balanced die is tossed 7 times. Okay, एक डाइज है 7 बार टॉस किया गया है, मतलब n हो गया 7. If the event of getting number 5 or more is called success. 5 और more मतलब डाइस में देखो टोटल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6. तो 5 और more मतलब 5 6. सो 2 by 6 मतलब हुआ 1 by 3. तो 1 by 3 हो गया सक्सेस. तो फेलियर क्या हो गया? फेलियर हो गया 2 by 3. आगे x denote the number of success in 7 trials. Then write the probability distribution of x. Okay, probability distribution लिखना है. Find the probability of getting 4 successes. Success मतलब x is equal 4 फाइंड करना है. And find the probability of getting at the most 6 success. ज़्यादा से ज़्यादा 6 सक्सेस या उससे कम. सो चलिए 1 by 1 सारी चीज़ें फाइंड कर लेते हैं. होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. द u इज़ 1 3 4 5 6. So probability of getting each number is 1 by 6. Event of getting a number 5 or more is called success. So success will be, as I said, 1 by 3. The failure will be 2 by 3. Your total number of trials is 7. Now using the probability distribution, p of x is equal ncx p power x q power n minus x. X is equal 1 0 1 2 3 till what? Till 7, है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 सक्सेसेस. तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 सक्सेस. 4 सक्सेस मतलब x की जगह क्या रखना है? 4 रखना है. तो x की जगह अगर आप 4 रखोगे तो ये सारी वैल्यूज़ तो है यहाँ पर, आपको x की जगह सिर्फ 4 सब्सटीट्यूट करना है. 4 सब्सटीट्यूट करोगे तो आंसर आता है 280 by 2187. इज दैट क्लियर? इससे डेसिमल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है इफ़ यू वांट. Now probability of getting at the most 6 success. At the most 6 success का मतलब होता है 6 या उससे कम. मतलब 0 p of 0 plus p of 1 plus p of 2 plus p of 3 plus p of 4 plus सब मतलब all, है ना, p of 6 तक. बस इसमें क्या नहीं आया? तो इसमें 7 नहीं आया. तो एक काम कीजिए 1 माइनस पी ऑफ 7 कर दीजिए तो आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी. तो 1 माइनस पी ऑफ 7 कर देते हैं. x की जगह आप 7 सब्सटीट्यूट कर दो. 7 सब्सटीट्यूट करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 1 बाई 2187. उसको 1 में से माइनस किया, सो 2186 डिवाइडेड बाई 2187. दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. सो होपफुली आपको समझ में आ गया है. नाउ द इलस्ट्रेशन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस lecture. A social worker claimed that 10% of young children in a city have a vision problem. So vision problem हो गया 0.1. 10% का मतलब यही होता है. और not having vision problem हो गया 0.9. ठीक है. A sample survey agency takes a random sample of 10 young children. So n is equal 10. 10 young children from the city to test the claim. If at the most one young child is affected by the vision. At the most ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक बच्चा भी अफेक्टेड है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक का मतलब क्या हुआ? एक या उससे कम. एक या उससे कम.
मतलब p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1, ठीक है. Affected by the vision problem, the claim of social worker is rejected. Find the probability that the claim of worker is rejected. Reject होने का मतलब क्या होता है कि रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक का अगर है तो वो रिजेक्टेड. द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यंग चिल्ड्रन, एक्सपेक्टेड नंबर मतलब होता है एनपी फाइंड करना है. हैविंग विजन प्रॉब्लम इन द रैंडम सिलेक्टेड. सो विजन प्रॉब्लम मतलब 0.10 0.10 इंटू एन करोगे तो आपको मिल जाएगा एन पी. इज दैट क्लियर? सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है. लेट्स हैव द सॉल्यूशन ऑफ इट. नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट अ यंग चाइल्ड हैव आई प्रॉब्लम इज 0.1. Not having eye problem is 0.90 as I said. Now the n is 10, p is 0.1. So formula is p of x is equal ncx p power x q power n minus x. For binomial distribution, p of x is equal 10c by x 0.10 power x. ये सारी वैल्यूज मतलब लिख दी. अब पहला क्या कह रहा था? probability that the most young child has eye problem, मतलब p of 0 plus p of 1 as I said. so p of x की जगह 0 रखना है, फिर 1 रखना है, तो इसका मतलब 1, इसका मतलब 1, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लोगे. इस तरह से इसका सॉल्यूशन करोगे. सॉल्यूशन करने पर अल्टीमेटली आंसर आता है 0.7361. 0.7361. दिस इज द आंसर ऑफ 1. नाउ सेकेंड, द एक्सपेक्टेड नंबर का मतलब होता है एन पी. द एन इज 10 एंड द पी इज 0.1. द आंसर इज 1. So that's it. That's all for today. Thank you. Your homework is 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. How many times? 2 times. So that's it. Bye bye. Thank you.